Hello students, I am Monika Gupta from MA International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start your chapter number 9 in science, which is natural disasters. Okay, natural disasters. In this chapter we will discuss various types of natural disaster. We will discuss various types of natural disasters, explain how earthquakes occur and how volcanoes erupt, identify different types of volcanoes, list various other natural disasters. What is natural disaster? देखो, as a name indicates, look, as a name indicates, it is a natural event that causes great destructions and damage to the property and sometimes loss of life as well. Natural disasters, it is a natural event that causes great destruction, बहुत destruction करता है, damage करता है property को, humans को, animals को, and sometimes loss of life as well. काफ़ी लोग अपनी life को loss करते हैं, काफ़ी लोग मर भी जाते हैं. First natural disaster is earthquake. You must have heard about earthquake. An earthquake is a sudden shaking or tremor of the earth caused due to the movements or vibrations inside the earth. Okay, earthquake क्या होता है? कभी सुना है earthquake? like दिल्ली में क्या है, भूकंप के झटके महसूस हुए. कभी न्यूज़ में हाइलाइट्स आती है दिल्ली में भूकंप के झटके. क्या होता है भूकंप? It is earthquake. What is earthquake? It is a sudden or shaking or movement. Tremor means sudden shaking or movement of the earth which is caused due to the movement or vibration inside the earth. अर्थ के इनसाइड में क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, वी लिव ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के इनसाइड में जो भी मूवमेंट और वाइब्रेशंस चलते हैं इस वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक कॉज होता है. अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉज ड्यू टू द मूवमेंट और वाइब्रेशन इनसाइड द अर्थ. As we all know, earth is made up of three layers. Earth is made up of three layers: crust, mantle and core. Earth is made up of three layers: crust, mantle and core. The outermost layer of earth is called the crust. Earth की outermost layer क्या होती है? Crust. The outermost layer of earth is called the crust and we live on earth's crust. हम कहाँ रहते हैं? earth के outermost layer में, which is crust. The layer below the crust known as mantle is made up of hot rocks. The layer below the crust. crust के below में कौन सी layer होती है? known as the mantle, which is made up of hot rocks. किसकी बनी होती है mantle? made up of hot rocks. The core is the innermost layer of the earth. Outermost is the crust, middle layer is the mantle and the core is the innermost layer of the earth. It is made up of hot molten material. core किसका होता है? It is made up of hot molten material. A lot of movement continuously happens inside the core. कहाँ पे होता है अर्थ का मूवमेंट? अर्थ का वाइब्रेशन कौन सी लेयर में होता है? inside the core. inside the core a lot of movement happens. At times there is a lot of pressure on the upper layers of mantle and crust of the earth which causes strain. देखो क्या होता है, बहुत सारा प्रेशर, लाइक इनसाइड कोर के अंदर इतना मूवमेंट होता है कि मेंटल और क्रस्ट में बहुत सारा प्रेशर अपीयर होता है which causes strain. When two blocks of the earth suddenly slip past one another, it gives rise to an earthquake. When two blocks of the earth, जब अर्थ के दो ब्लॉक्स suddenly slips past one another, जब अर्थ के दो ब्लॉक अचानक एक दूसरे से टकराते हैं, when the two blocks of the earth suddenly slip past one another, जब अर्थ के two blocks suddenly एक दूसरे से टकराते हैं, it gives rise to an earthquake. क्या होता है? earthquake. It gives rise to an earthquake. Okay, the surface where they slip, जहाँ पे वो टकराते हैं, the place or the surface where the two blocks of the earth slip is called a fault. earthquake कैसे होता है? when the two blocks of earth slip into each other, pass into each other and it causes to earthquake, and the surface where they slip, the place where they slip is called a fault. जहाँ पे भी two blocks of earth टकराते हैं उस place को हम कहते हैं fault. This causes shakes and tremors deep below the surface of the earth and gradually rises an earthquake. क्या होता है ये जब two blocks of the earth टकराए एक दूसरे से? It causes shakes and tremors deep below the surface of the earth. earth के बहुत deep surface में, deep below में क्या होता है? movement होता है, shakes होता है, बहुत ज़्यादा धरती हिलने लग जाती है. आपने देखा होगा, सुना होगा, अर्थ मूव कर रहा है. कैसे करता है वो? बिकॉज अर्थ के टू ब्लॉक स्लिप करते हैं फ्रॉम वन अनदर. अर्थ एंड ग्रेजुअली राइज एज एन अर्थक्वेक. क्या होता है फिर वो? अर्थक्वेक होता है. व्हेन द ग्राउंड शेक्स इट कॉजेज लैंडस्लाइड्स एंड एवलांचेस स्पेशली ऑन माउंटेन्स. देखो ग्राउंड हिलता है व्हेन द ग्राउंड शेक्स,
ग्राउंड शेक करता है तो क्या होता है, इट कॉजेज लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड्स होती है मोस्टली उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड्स होती है, एंड एवलांचेस स्पेशली ऑन माउंटेन, एवलांचेस माउंटेन्स में क्या होता है, लाइक बर्फ के पहाड़ों का गिर जाना. This can damage buildings and injure people due to falling objects and rocks. क्यों ये बिल्डिंग्स और पीपल्स को भी डैमेज करता है, क्योंकि लैंडस्लाइड कैसे होती है, रोप फॉर्म में होती है, स्लोप डाउन फॉर्म में होती है लैंडस्लाइड, एंड इंजर ड्यू टू फॉलिंग ऑब्जेक्ट. जब स्लोप डाउन फॉर्म में हो रही है तो काफ़ी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फॉल करते हैं, काफ़ी ऑब्जेक्ट्स गिरते हैं, पत्थर रॉक्स गिरते हैं, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज लार्ज क्रैक्स इन द ग्राउंड. ग्राउंड में भी क्या कॉज करता है, लार्ज क्रैक्स. 2011 सिक्किम अर्थक्वेक किल्ड अबाउट 111 पीपल. 2011 में सिक्किम में अर्थक्वेक आया था जिसमें अबाउट 111 पीपल की डेथ हो गई थी. ऑल दीज पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर होता है जो नेचुरली होता है, डिस्ट्रक्ट कर जाता है काफ़ी चीज़ों को, लॉस ऑफ लाइफ, बिल्डिंग्स, ये इसमें ह्यूमंस का रोल है, बट अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डिजास्टर. A seismometer is an instrument that detects the vibration caused by an earthquake. Seismometer is an instrument. What is an instrument? Seismometer is an instrument that detects the vibration. क्या करता है seismometer? It detects the vibration caused by an earthquake. Earthquake आता है तो क्या होता है, vibration होता है, तो वो detect करता है vibrations को, and produces a pattern on the paper which is called a seismograph. एंड देन इट प्रोड्यूसेस अ पैटर्न ऑन द पेपर, पेपर पे एक पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सीज्मोग्राफ. अ सीज्मोग्राफ शोज द पैटर्न ऑफ मोशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. सीज्मोग्राफ क्या करता है, किसका पैटर्न होता है पेपर पे, इट शोज द पैटर्न ऑफ अ मोशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के टाइम पे ग्राउंड का मोशन कैसा था. साइंटिस्ट हु स्टडी अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड सीज्मोलॉजिस्ट. क्या होता है, साइंटिस्ट हु स्टडी अर्थक्वेक, जो साइंटिस्ट अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं. द साइंटिस्ट हु स्टडी अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को स्टडी करना मीन्स अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करना, अर्थक्वेक कैसे हुआ, अर्थक्वेक का कॉजेज क्या क्या हुए, कितना डिस्ट्रक्शंस हुआ. अर्थक्वेक साइंटिस्ट हु स्टडी अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड सीज्मोलॉजिस्ट, एंड द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सीज्मोलॉजी. अर्थक्वेक की स्टडी कर, जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीज्मोलॉजिस्ट, और अर्थक्वेक की स्टडी करना उस टर्म को बोलते हैं सीज्मोलॉजी. Scientists try to predict earthquakes so that people can be moved out to a safer place before an earthquake. साइंटिस्ट, सीज्मोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट क्या करते हैं, अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करते हैं, उन्हें पहले ही पता लग जाता है कि यहाँ अर्थक्वेक आने वाला है, सो दैट पीपल कैन बी मूव्ड आउट, ताकि लोग सेफर प्लेस पे पहले ही मूव आउट कर जाएं. They have identified various areas of the world that are prone to earthquake. वर्ल्ड में काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मोस्टली अर्थक्वेक आता ही आता है. People living in these regions are trained on how to cope in case of an earthquake. And the people living in these regions, जहाँ भी वर्ल्ड के ऐसे एरियाज है जहाँ मोस्टली अर्थक्वेक होता है, एक नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वेक होता है, वहाँ के लोग, वहाँ के पीपल क्या होते हैं, अब हैबिचुअल, उन्हें ट्रेन कर दिया जाता है कि अगर अर्थक्वेक आता है तो सिचुएशन में कैसे कोप करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए. At the time of an earthquake, if you feel vibration, if you feel some vibration of an earthquake, you have to first drop down on your hand and knees so that you don't fall suddenly. सबसे पहले क्या करना होता है, you have to drop down on your hands like this. Drop down on your hands and knees so that you don't fall suddenly, ताकि आप अचानक नहीं गिरेंगे. Use your arms to cover your head and neck. You have to use your arms to cover your head and neck like this. Hold on to a heavy object so that you do not move easily. You have to hold on to a heavy object so that you do not move easily, ताकि आप easily move नहीं करेंगे. With your arms to cover your head and neck. Okay, some earthquakes are weak that do not cause much damage to the resources and are considered as slight tremors. Some earthquakes are weak. कभी कभी ऐसा होता है कि earthquake इतना heavy नहीं होता, वो strong नहीं होता. कभी क्या होता है, सम अर्थक्वेक्स आर वीक. वीक होता है, थोड़े से ही अर्थक्वेक के मूवमेंट होता है, अर्थ के अंदर इनसाइड कोर में क्या होता है, थोड़ा बहुत ही मूवमेंट होता है. सो डैट डू नॉट कॉज मच डैमेज टू द रिसोर्सेज. तो वो रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज, मेन रिसोर्सेज, इन्हें ज़्यादा मच हार्मनेस नहीं पहुंचाता, ज़्यादा डैमेज नहीं करता. और ऐसे अर्थक्वेक्स को हम क्या बोलते हैं, दीज अर्थक्वेक्स आर कंसिडर्ड एज स्लाइट ट्रेमर्स. The magnitude of an earthquake depends on the size of the fault. The magnitude of an earthquake का magnitude किस पे depend करता है, on the size of the fault के size पे. It is measured on the Richter scale. earthquake किस पे measure किया जाता है, on the Richter scale.
द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिचर स्केल रीडिंग। देखो लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक किस तरह का अर्थक्वेक था, स्ट्रॉन्ग था, वीक था, लाइट था, मॉडरेट था, वो किस बेसिस पे कैटेगराइज करा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिचर स्केल रीडिंग्स, रिचर स्केल की रीडिंग्स पे कैटेगराइज करा जाता है द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। इफ द रीडिंग रेंजेस फ्रॉम 4 to 5, अगर रिचर स्केल की रीडिंग कितनी आती है 4 to 5, द अर्थक्वेक इज रिगार्डेड एज मॉडरेट। तो मतलब अर्थक्वेक कैसा है, मॉडरेट, ना तो ज़्यादा सीवियर है और ना ही ज़्यादा मेजर है, मॉडरेट। इफ द रीडिंग रेंजेस फ्रॉम 6 to 7, लाइक 4 to 5 है तो अर्थक्वेक मॉडरेट है, ठीक है। इफ द रीडिंग रेंजेस फ्रॉम 6 to 7 इट इज रिगार्डेड एज मेजर, लाइक अगर 6 to 7 रीडिंग आती है रिचर स्केल की तो अर्थक्वेक क्या है, मेजर है। एंड फॉर रीडिंग 8 इट इज कंसिडर्ड एज सीवियर, बट अगर रिचर स्केल की रीडिंग कितनी आती है, 8 आती है, देन इट इज कंसिडर्ड एज सीवियर। तो मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे अर्थक्वेक है।